केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुशासन सप्ताह કર્યા ઉદ્ઘાટન ग्रामीण क्षेत्र में लोगों शिकायतारा सुलझाड़ा और सेवा वितरण में सुधार खातर राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में कर्यो जावेला काम। लोकसभा रमाय चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित। कानून मंत्री किरण रिजिजू कहा फर्जी मतदान ने रोकणो है विधेयक रो थे। राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा में भी शामिल। पढ़निया ने बांटिया डिग्रियां। राज्य सरकार 3 बरस पूरा व्यवहार मौके जयपुर समेत प्रदेश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री डॉक्टर पीडी कल्ला अलवर में कर्या नुमाइश रो उद्घाटन। और प्रदेश में जाड़ा तीखा तेवर, शीतलहर रो प्रकोप जारी। जनजीवन माथे असर, कई जगह पारो जमाव बिंदु सु नीचे। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुशासन सप्ताह उद्घाटन कर्या। केंद्र सुशासन सप्ताह के तहत खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की शिकायतारा निपटारा और सेवा वितरण में सुधार खातर एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में काम कर्या जावेला। केंद्रीय मंत्री सुशासन सप्ताह पोर्टल री भी शुरुआत कर्या। प्रधानमंत्री सुशासन सप्ताह की सफलता खातर आपने शुभकामनाएं देना है। प्रशासन गांव की ओर अभियान की शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया। जितेंद्र सिंह 2 साल की उपलब्धियों पर एक ई-बुक लॉन्च भी कर रहे हैं। I think to recall that, we have to recall that soon after Shri Narendra Modi took over as Prime Minister in 2014, one of the first mantras that he gave us was maximum governance and minimum government. And one of the first tasks that he assigned to us was to implement this mantra. And looking back today, I think we have managed to reasonably walk the talk, and the credit for this goes most of all to the team ARPG. I have no hesitation to compliment Sanjay Singh ji, Mr. Srinivas and his team, because if I don't pat their back and I don't pat my own back, who else would? And having said that, also because when we came into the government and this department, it was not a very visible department in Government of India. Nobody even knew where ARPG is located. Even today, many people are not aware that there is something called ARPG located in the Sardar Patel Bhavan. But must compliment the team. They have now made it visible pan-India. And then when we talk of good governance, as was being spelled out to you by Sanjay Singh ji, the first and the foremost objective of good governance, as we understand, as we have tried to understand, research and study over the years, is to bring in ease of living in the life of a common man. Because if ultimately governance is aimed at that objective, no amount of whatever we do in offices is going to make a difference to the society. And this government, I think, was very clear, at least Honorable Prime Minister was very clear, and it was not difficult for us because we had a very, very illustrious example in the form of Prime Minister himself. We just had to emulate what he was saying, what he was doing. And I think the first, or the earliest indication of the declaration of intent that he wanted to make was when just within 3 months after the government came in, we did away with an old age practice from the British legacy, that of getting the documents attested, and the self-attestation was introduced. And we sent out a loud message that here was a government headed by Prime Minister Modi, which had the capacity, the courage and the confidence to trust the youth of this country. And therefore that was our intent, to bring in ease in the working of a common man. And the second most important objective of good governance is to ensure equal opportunity to all, or a level playing field to all. That also came from none less than the Prime Minister himself when addressing the nation from the ramparts of Red Fort on the 15th of August 2015. He announced that the interviews to the recruitments would be abolished, so that
there are no more allegations of any nepotism or any partiality having been done, and it's level playing for all. And if the third objective is citizen centricity, as was being spelled out by speaker after speaker before me, I think the most prominent illustration of that is the grievance cell, which is again being looked after by ARP, which is now being linked with most of the states. When we came in 2014, because unless we draw comparison, nobody would know what has actually happened, because that is what the theory of relativity by Albert Einstein has stood the test of time. If we say all this is being done, somebody would say, oh, this was being done, or they would say, okay, you were in the department, what else had to do? You were being paid salary for that. But what is important to understand, what was not being done, what is being done now. So when we came in 2014, the annual number of grievances being lodged in the central cell was just about 2 lakhs. Today it is almost 25 lakhs. So it's been 20 times, almost 11, 12 times increase. And many of the states did have a grievance website, but it was never being visited. Today it is connected with the central CP ground. लोकसभा में आज चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित થઈ ગયું। વિધેયકને કાનૂન મંત્રી કિરણ રિજિજુ લોકસભા में पेश કર્યા, જેમાં વોટર કાર્ડ ने आधार कार्ड से जोड़વાનો प्रस्ताव है। कानून मंत्री कहा कि विधेयक रो ध्येय फर्जी मतदान ने रोकनो है। और चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश हुआ और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चुनाव की जरूरतों को लेकर ये बिल लाया गया है। इसमें मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। और विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को निराधार बताते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार ने जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का प्रस्ताव इसलिए किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण न करा सके तथा फर्जी तरीके से मतदान को रोका जा सके। साथ ही विधि मंत्री ने कहा कि सदस्यों को इस पर सरकार का साथ देना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र आज मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर दीक्षांत जलसा में शामिल हुआ। इन मौके कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद था। जलसा में राज्यपाल विश्वविद्यालय पढ़निया ने डिग्रियां बांटिया। इनसु पहली विश्वविद्यालय पुग्या कुलाधिपति और राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निरोगी राजस्थान से जुड़ी नुमाइश और राज्य की पहली कैंसर निदान गाड़ी ने देखा। इन मौके वारे साथ उद्योगपति एल.एन. मित्तल भी मौजूद था। वे बुजुर्गों खातर स्वास्थ्य सेवा में और कुपोषित टाबरा खातर चलाए जा रहा कार्यक्रम में मदद करवाने कहा। साथ ही वे कैंसर उपचार खेतर में और बत्ती तेजी सु काम वे इन ध्येय सगली सुविधाओं सु लैस एक गाड़ी सरकार ने देबारी घोषणा कर्या। मुख्यमंत्री इन मौके कहा कि राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य खेतर में एक मजबूत ढांचो तैयार करी जा रही है। राज्य सरकार 3 बरस पूरा व्यवहार मौके राख्या जावाला कार्यक्रम की कड़ी में दौसा जिला में विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इन उद्घाटन जिला कलेक्टर पीयूष समारिया कर्या। इन मौके पर कहा कि इन नुमाइश के जरिए सरकार 3 वर्षा की उपलब्धियां और सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता ताणी पुगाई जा रही है। नुमाइश में नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी समेत कई जाने माने लोग मौजूद था।
काफ़ी हर्ष का विषय है। जैसे कि सरकार के 3 साल पूर्ण होने के कार्यक्रम में राज्य स्तर के लास्ट 2 दिन में 18 और 19 तारीख को हुए हैं और अब जिला स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज इसी कड़ी में यहाँ 20 तारीख को दौसा जिले हेडक्वार्टर्स में एक प्रदर्शनी जिसमें सभी विभाग अपने कार्यों का शोकेस कर रहे हैं, उसका शुभारंभ किया गया है। और मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा 21 को हमारे प्रभारी मंत्री जी का कार्यक्रम है दौसा जिले में, और इनमें विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे प्रभारी मंत्री जी, और 3 साल में जो सरकार के कार्य पूर्ण हुए हैं उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया है और इसके साथ साथ काफ़ी बेनिफिशरीज को भी व्यक्तिगत लाभ दिए जाएंगे और इसके साथ शिलान्यास के भी कार्यक्रम प्लान किए गए हैं। सरकार के तो 3 साल पूरे हो गए हैं। आज इस उपलक्ष्य में हमारे बहुत सारे जैसे महिला विकास का भी कल वो उसका सैनिटरी नैपकिन का था वितरण, और पेयजल का भी था, पालनहार योजना, कन्या योजना, छात्रावास योजना, कॉलेज के लिए काफ़ी सब चीज़ों में बहुत विकास हुआ है। और आज हमारा 1 साल पूर्ण होने के लिए हो गया है, उसमें भी हमारे रोड भी जगह जगह, नालियाँ, लाइट में भी और पार्कों में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूँ। राजस्थान सरकार 3 बरस पूरा व्यापार बोके अलवर जिला में राखी जी विकास प्रदर्शनी उद्घाटन प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कर्या। इन मौके स्थानीय विधायक सफिया खान, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर के अलावा स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन आला अधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और लोग मौजूद था। इन मौके प्रभारी मंत्री पर्यावरण प्लान रो भी विमोचन कर्या। वे कहा कि नुमाइश रमाए राज्य सरकार का निशु कर्या गया विकास रा कामकाज रे साथ है या कामा ने पारदर्शिता रे साथ है दर्शायो गयो है। आराम से भैया, आराम से। जयपुर जवाहर कला केंद्र में राज्य सरकार 3 बरस पूरा व्यवहार मौके न्यारा न्यारा महकमा का निशुल्क लगाएगी विकास प्रदर्शनी ने खाली सरकार रा कामकाज न दर्शा रही है बल्कि लोगों ने शिक्षित भी कर रही है। यही कारण है कि घनी संख्या में लोग खासतौर से नौजवान इनसु जुड़ रहा है। परिवहन और सड़क सुरक्षा महकमा का निशुल्क लगाएगी नुमाइश रमाए दुर्घटना में घायला ने प्राथमिक उपचार देवा साथ है हृदय गति रुकवा माले CPR तकनीक सु किण भात बचाए जा सके है, इन बाबत भी जानकारी दी जा रही है। राज्य स्तरीय नुमाइश रमाए शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और दूजा महकमा का निशु दर्शाए गयो साहित्य भी लोगों ने घणो लुभारियो है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेवाड़ी रे कने पाली रे माए खास तरीका सु बनी कंटेनर इकाई ने देखा और अधिकारियों ने माल लदान रा खेतर में नवाचार रा तर्क संगत विचार कर काम करवारो मंत्र दीना। रेल मंत्री कहा कि नवी तकनीक सु तैयार ए कंटेनर काश्तकार छोटा व्यापार ने घणो फायदो पुगावला। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रो 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में आज सु शुरू हुयो। 2 दिना चानी चालबड़ा इन सम्मेलन रो उद्घाटन चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा कर्या। कार्यक्रम रबाए पहली आला केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमजी भाई डामोर, प्रदेशाध्यक्ष KC घुमरिया समेत देश भर से आया कई नुमाइंदा आदिवासी समाज रा लोग मौजूद था। प्रदेशाध्यक्ष घुमरिया बताया कि सम्मेलन रमाया आदिवासी समाज रा हित और अधिकार माथे चर्चा करी जावला। 2 दिन तक यहाँ मंथन करेंगे, विचार करेंगे कि आदिवासियों को इतनी सुविधाएं देने के बाद भी कहाँ कमी रह गई, कहाँ खामी रह गई, उसको किस तरह दूर किया जा सकता है। इनके जो 2 दिन के मंथन से जो भारत सरकार को, राज्य सरकार को जो सुझाव आएंगे, विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग जातियों की अलग अलग समस्याएं हैं, जनजातियों की, उस पर मंथन करके एक तरह से मंथन करेंगे क्या होना चाहिए, वास्तव में सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, उसमें क्या सुधार होना चाहिए। ये मंथन जब आएगा, इनकी जो सुझाव आएंगे, इनकी जो सिफारिश आएगी, उन पर सरकार निश्चित रूप से अमल करेगी। आदिवासियों को और बेहतर किस तरह से उनकी सुविधाओं को बेहतर हम बना सकते हैं। एट्रोसिटी एक्ट को ठीक से लागू किया जाए
महिलाओं का सशक्तिकरण है, 5वीं अनुसूची को ढंग से लागू किया जाए, तो ये सब बातें हैं, उनको रखा है इसमें। उस पर गहन चिंतन होगा। हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग सारे पूरे इंडिया के ट्राइबल नेता आए हुए हैं, इस पर चर्चा होगी, फिर उसके निष्कर्ष जो निकाल के केंद्र सरकार को भेजेंगे, राज्य सरकार को भेजेंगे, सब राज्य सरकारों को भेजेंगे। खबरा हाल और भी है, पर पहले या विराम। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खबरा में एक फिर स्वागत। प्रदेश में शीतलहर और कोहरा ने देखता थका राज्य निर्वाचन आयोग 4 जिला कोटा, बारा, श्रीगंगानगर, करोलीरा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव खातर वेपाड़ी गिनती बगत में फेरबदल कर्यो है। या जिला माय जिला मुख्यालय माथे अब सुमारे 9 बजे सु गिनती शुरू वेला आयोग री सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता या जानकारी देना। देश में कोरोना रा नुवा रूप ओमिक्रॉन का मामला में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है। लाला 24 घंटा के दौरान देश भर में ओमिक्रॉन का 10 नुवा मामला सामने आया है। या में महाराष्ट्र में 6 और गुजरात में 4 नुवा मामला शामिल है। इनके साथ ही देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मामला की संख्या 153 रह गई है। चौथी खबर यह है कि कोविड-19 का 7081 नुवा मामला सामने आया है, जबकि इन बीमारी से स्वस्थ व बड़ा मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। इन भारत देश में अब संक्रमित मामला की संख्या घटर 83,913 रह गई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना के कुल 5 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 12 लाख मामले सामने आए। वहीं रूस में 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। फ्रांस में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,77,000 से ज्यादा हो चुकी है और जर्मनी में 68 लाख के करीब मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना की स्थिति इन बगत काबू में है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा आंकड़ा मुजब लाला 24 घंटा के दौरान अठे कोरोना रा 17 नुवा संक्रमित मिला है, जबकि 35 मरीज इन बीमारी से स्वस्थ भी रह चुका है। अब प्रदेश में 241 संक्रमित मामला है। 4 जिला में मिला या नुवा संक्रमित मामला में सबोबत्ती 9 संक्रमित जयपुर में मिला है, जबकि अठे काल एक ही दिन में 25 जना इन बीमारी से स्वस्थ हुआ है। जयपुर में अब 95 संक्रमित मामला बाकी है। जयपुर जवाहर कला केंद्र में 11 दिवसीय लोक रंग कार्यक्रम रो आयोजन करी जा रही है। बत्ती जानकारी इन रपट रवाय। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहा 24वां लोक रंग उत्सव 2021 एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। 11 दिवसीय इस उत्सव में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार विभिन्न संस्कृतियों की प्रस्तुतियां देखकर भिन्नता में एकता की झलक पेश कर रहे हैं। लोक रंग उत्सव में देश भर के 650 से अधिक लोक कलाकार अपने अपने क्षेत्र की लोक कलाओं की खूबसूरती को प्रस्तुत कर रहे हैं।
कलाकारों ने गुजरात का ताली रास नृत्य पेश कर दर्शकों की वाह लूटी। इसी बीच महाराष्ट्र का लावड़ी, गोवा का कुनबी और राजस्थान के घूमर नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। लोकरंग में रिदम ऑफ केरला के तहत केरल के कलाकारों ने विभिन्न लोक संगीत और नृत्यों की सीरीज पेश की। इनमें इड़क्का वादन और मयूर नृत्य जैसी प्रस्तुतियां दी गईं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये लोकरंग उत्सव एक मंच पर भारतीय संस्कृति को साकार करने का एक अनूठा प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, राजस्थान। उत्तरी भाड़ चाल कारण प्रदेश में शीतलहर कड़ाकारी ठंड कारण लोग घना परेशान बह रहा है। कई जगह कोहरा कारण गाड़ियारी आवाजाही में घनी परेशानी बह रही है। राज्य कई शहर में पारो जमाव बिंदु से नीचे चलो गयो है। जयपुर जोबनेर में जठे कमोकम तापमान -5 डिग्री से भी नीचे चलो गयो। इन भांत चूरू में -2.6, सीकर में -2.5, राजसमंद में -1.1, आबू में -1, करौली में -0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। राजधानी जयपुर में कमोकम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा मुजब आवाड़ा 2-3 दिन ताणी शीतलहर असर रहने साथ ही तापमान में गिरावट वह सके है। फिलहाल राज्य में कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन बनी हुई है। वहीं दिन में भी कोल्ड डे की कंडीशन है और नॉर्थ राजस्थान के कुछ भागों में डेंस फॉग भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं चूरू में भी मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति अगले 3 दिनों तक राजस्थान में कुछ स्थानों पर जारी रहेगी। वहीं दिन में भी कोल्ड डे की परिस्थिति अगले 24 घंटों तक बनी रहेगी। 22 दिसंबर से संभावना है कि तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो और जो कोल्ड वेव यानी शीतलहर का जो दौर चल रहा है उसमें राहत मिलने की संभावना है। और अब खास खबर एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुशासन सप्ताह कर्या उद्घाटन। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की शिकायतारा सुलझाड़ा और सेवा वितरण में सुधार खातर राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में कर्यो जावला काम। लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित। कानून मंत्री किरण रिजिजू कया फर्जी मतदान रोकणो है विधेयक रुधे।
राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा में वे शामिल पडणिया ने बांटिया डिग्रियां। राज्य सरकार 3 बरस पूरा व्यवहार मौके जयपुर समेत प्रदेश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला अलवर में करया नुमाइश उद्घाटन। और प्रदेश में जाड़ा राती खातेवर शीतलहर प्रकोप जारी, जनजीवन माथे असर, कई जगह पारो जमाव बिंदु से नीचे। इंडा साथे ये खबर 8 पूरी। नमस्कार।